السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، پوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ کرشنا ندی پر پانی کے استعمال کے لیے ٹیلی میٹر قائم کرنے دونوں وزرائے اعلیٰ کا اتفاق۔ بنکا چرلا پروجیکٹ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اجلاس کے بعد ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ میڈیگڈا پر کھلے مباحث کا KTR نے ریونت ریڈی کو کیا پھر ایک بار چیلنج۔ ریونت ریڈی راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، KTR کا خطاب۔ ہوا کے دباؤ میں کمی سے بارش کے امکانات، کہیں شدید کہیں ہلکی بارش کی پیش قیاسی، وسط جولائی تک منفی بارش۔ گانجے کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، رام چندر پورم میں گانجا ضبط۔
और वरंगल के वर्धनापेट में अफसोसनाक वाकया, बीवी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर शौहर का किया कत्ल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। दोनों रियासतों में आबी तनाज़े के हल को लेकर दिल्ली में जल शक्ति दफ्तर में जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल की सदारत में 4 शुंबे को दोनों रियासतों के वज़राए आला रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में इत्तफाक राय इस तरह है, प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने के टेलीमीटर मिशन कायम की जाए। वज़ीर आला की इस तजवीज़ को आंध्र प्रदेश ने कबूल कर लिया। गोदावरी रिवर बोर्ड और कृष्णा रिवर बोर्ड ने इस पर रजामंदी जाहिर की। श्रीसैलम प्रोजेक्ट की मरम्मती कामों को करने आंध्र प्रदेश ने कबूल कर लिया। गोदावरी और कृष्णा पर तामीर हो रहे दोनों रियासतों के प्रोजेक्ट्स के ज़ेर इल्तिवा कामों, मसाइल की एकसुई के लिए ओहदेदारों और माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया गया। कमेटी 1 हफ्ते में तश्कील देने से इत्तेफाक किया। दोनों रियासतों ने इत्तेफाक किया कि हर मसले को मुबाहिस के जरिए हल किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बनकाचरला प्रोजेक्ट की तामीर पर कोई सवाल ही नहीं किया गया। हम इसको रोकने का मुतालबा किस तरह करते। दिल्ली में दोनों वज़राए आला के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस इजलास में कोई एजेंडा नहीं था, ये गैर रस्मी इजलास था। इस इजलास में आंध्र प्रदेश की जानिब से बनकाचरला प्रोजेक्ट का मुतालबा नहीं किया गया। हमको इसे रोकने का मुतालबा हम किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस इजलास में ओहदेदारों और माहिरीन के साथ कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया गया। ये कमेटी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मसाइल को ज़ेर बहस लाएगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास में कृष्णा के पानी के इस्तेमाल पर टेलीमीटर नस्ब करने से आंध्र प्रदेश ने इत्तेफाक किया है। दोनों रियासतों में गोदावरी और कृष्णा वाटर बोर्ड कायम करने से भी इत्तेफाक किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनको मरकजी वजीर आबी वसाइल सीआर पाटिल पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने इस इजलास में जज का रोल अदा किया। अगर उनके रोल पर शक होगा तो आगे कदम बढ़ाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो मसाइल को मंजूरी मिल चुकी है, इसको ही ज़ेर बहस लाया गया। సంస్థలే ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల అభ్యంతరాలను వాళ్ళు లేవనెత్తిండ్రు. కాబట్టి ఈ సమావేశంలో ఈ అంశాలేవి ప్రస్తావనకు రాలేదు. ఈ సమావేశంలో టెలిమెట్రీ విషయంలో ఇప్పుడు కృష్ణానది బేసిన్ మీద నీటి వినియోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుంది, తెలంగాణ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుందో గుర్తించడానికి టెలిమెట్రీ పెట్టాలని ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చూపించడం శాశ్వతంగా. अब अजम्पशन का कोई मौका नहीं है, अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं। अगर आपको कहीं दिखे तो बोले तो हम लोग वो भी कैसे उसको आगे लेकर जाएंगे देखेंगे। अभी तक तो सीआर पाटिल ने ये रोल नहीं किया, वो जज का रोल प्ले किए, वो जज जैसा ही दिखा हमको। हमको कोई शक नहीं है। अगर जिस दिन हमको शक आएंगे तब आपको पहला आपको ही बोल देंगे। अन्य కృష్ణా ఉపనదులు, గోదావరి ఉపనదులకు సంబంధించిన నీటి కేటాయింపులు, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు, కొత్త ప్రాజెక్టుల అనుమతులు అన్నీ అక్కడి నుంచే చర్చ మొదలవుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వాయిదాలు పడుతున్న అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలను కూడా అక్కడ చర్చ చేస్తారు. అక్కడి నుంచే ముందుకు వే ఫార్వర్డ్, ముందుకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలనో నిర్ణయం జరుగుద్ది. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक बार फिर चैलेंज किया है। टीआरएस भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में दम है तो शिगाफ पड़ चुके मेड़गड्डा बैरेज पर खुले मुबाहिस के लिए वो तैयार हैं। रेवंत रेड्डी इस चैलेंज को कबूल करें। रेवंत रेड्डी ने मुबाहिस का चैलेंज करके राह फरार इख्तियार की थी, इसलिए फिर एक बार मुबाहिस के लिए दावत दे रहा हूं।
मेडिगड्डा पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि आने वाले मजालिस मुकामी इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएंगे। केटीआर ने कहा कि लातों के भूतों को बातों से नहीं मानते, इसलिए रेवंत रेड्डी को उनकी जबान में जवाब दे रहा हूं। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे की तरफ से नमाज को मराठी में अदा करने के रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नांदेड़ में सेशन कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर मौसूफ के साबिका ट्वीट को देखा जाए तो इसमें तबलीगी जमात का इस्तकबाल किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र असेंबली में मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर हुए मुबाहिस पर कहा कि आए दिन एक तबके के खिलाफ जो बोला जा रहा है वो सिर्फ अब अहम मसाइल से तवज्जो हटाने का हरबा है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में बाज़ वाक़यात का भी हवाला दिया। हुकूमत अपनी तरजीहात को छोड़कर इस तरह की सरगर्मियों को बढ़ावा दे रही है। विकसित भारत इस तरह की सरगर्मियों से नहीं बनेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। उनका निकाल के देखो आप। देखिए महाराष्ट्र में किसान परेशान है, किसानों की खुदकुशी बंद नहीं हो रही है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, और वो जो लड़कियों की स्कीम थी, क्या नाम था उसका क्या हो रहा उसका पता नहीं। कुरैश बरादरी के लोग स्ट्राइक पर हैं क्योंकि गौरक्षक उन पर जुल्म कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, उनका लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस नहीं खोला जा रहा है। इतना पब्लिक इशूज़ हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे। ये जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जरी टैक्टिक्स हैं। नाम बदलने से क्या लोग भूल जाएंगे क्या? जिम्मेदारी स्वीकारिए तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई 26 हमारे भारत के नागरिक को मजहब उनका पूछ कर, क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से था, उनको सर पे गोली मारी गई उनके परिवार के सामने। तो अगर उनको इतनी तकलीफ है गवर्नर साहब तो रिजाइन करें ना। आए दिन एक समुदाय के खिलाफ बोला जाता है, वो एम्बियंस को ख़राब नहीं करता। ये कुरैश बरादरी के लोग भैंस को लेके जा रहे हैं, भैंस प्रोहिबिटेड नहीं है, आप गौरक्षक रोक के मारते हैं, उससे एम्बियंस ख़राब नहीं होता। लीगली लेकर जा रहे तो बोलते नहीं मोटर व्हीकल एक्ट लगाएंगे, वो नहीं हुआ तो बोलते क्रूरटी ऑफ एनिमल लगाएंगे। आप इससे एम्बियंस ख़राब नहीं हो रहा। आपकी प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपका वो प्रायोरिटी है क्या? बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 9वें शेड्यूल में शामिल करने तक बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माहिरीन कानून के मशवरे के खिलाफ रियासती हुकूमत का ऑर्डिनेंस को गवर्नर को रवाना करना बदबख्ती है। 2015 में केसीआर दौरे हुकूमत में लाई गई ऑर्डिनेंस को तरमीम करके ऑर्डिनेंस को गवर्नर को रवाना किया गया। असेंबली में पास किए गए बिल को गवर्नर को रवाना किया गया, गवर्नर के जरिए सदर जमहूरिया को रवाना किया गया, बिल को ज़ेर इल्तिवा रखा गया। इस मौजू पर गवर्नर को ऑर्डिनेंस रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर जो ऑर्डिनेंस लाए थे इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया था। इस तजुर्बे के बाद ऑर्डिनेंस किस तरह लाया गया? बीसी तबके को इतना पागल समझ रहे हैं? तमिलनाडु की तरह 9वें शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात शामिल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब बीसी कायदीन भी इस हकीकत को कबूल करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में जो हिस्सा ले रहे हैं
ان کی جائیداد میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ENC مرلی دھر راؤ کے پاس 500 کروڑ روپے سے زائد رقم ہے تو KCR KTR ہریش راؤ کے پاس کتنی رقم ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم کی تعمیر میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ مار مچانے والوں کی جائیدادوں کو ضبط کر کے غریب عوام میں تقسیم کریں۔ ریاست تلنگانہ میں جولائی کے 15 دنوں میں قاتل خواہ بارش نہ ہو سکی، البتہ محکمہ موسمیات نے جمعرات 17 جولائی سے آنے والے 10 دنوں تک بڑے پیمانے پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان ایام میں خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کے 2 متواتر دائرے ابھرنے والے ہیں، جس کے اثر سے کچھ علاقوں میں طوفانی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی مشرقی و وسطی تلنگانہ کے کئی اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ اضلاع سوریا پیٹ، نلگنڈا کے چند علاقے، یدادری بھونگیری، سدی پیٹ، کریم نگر میں شدید بارش ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے چند مضافاتی علاقوں میں ہلکی بارش رہی۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورہ میں عوامی مسائل اور شکایت کی بروقت یکسوئی کرتے ہوئے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے منگل کو رام چندر نگر عیدی بازار میں CC روڈ کے مکمل کاموں کا معائنہ کیا۔ مقامی عوام سے ملاقات کے دوران موصولہ شکایت پر رکن اسمبلی نے فوری واٹر ورکس کے مینیجر سے رابطہ کرتے ہوئے رپورٹ دینے پر زور دیا۔ رکن اسمبلی نے ضرورت کے مطابق نئی سیوریج لائن پر بھی توجہ دلائی۔ اس موقع پر مجلس کے مقامی کارکنان بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے صدر مجلس کی ہدایت پر بلکاپور نالے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے GHMC کے عہدیداروں کو اس سلسلے میں ضروری ہدایات دیں، جس میں نالے کی صفائی، RCC کی سائڈ وال اور بیڈ ورک کے کاموں کو ترجیحی بنیاد پر پورا کرنا شامل ہے، جس پر عہدیداروں نے انہیں اس بات کا اطمینان دلایا کہ پورے کام جلد انجام دیے جائیں گے تاکہ نالے کا پانی ابل کر قریبی مکانوں میں داخل نہ ہو سکے۔ اس موقع پر مجلس کے رکن بلدیہ محمد نصیر الدین کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ گڈی ملکاپور میں منعقد ہونے والا جاب میلہ کامیاب رہا۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ جاب میلے میں 200 کمپنیوں نے حصہ لیا، جس میں 4000 لڑکے اور لڑکیوں کو جاب ملا ہے، جبکہ 20,000 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ تعلیمی قابلیت کی کوئی شرط نہیں ہے، SSC انٹر ڈگری رکھنے والے سبھی کو روزگار دلایا گیا، جس میں دوسری ریاستوں کے متوطن نے بھی جابز حاصل کیے ہیں۔ جن کمپنیوں نے جاب میلے میں حصہ لیا تھا وہ ان کی ضرورت کے تمام پوسٹ پر بھرتی کر لی ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس کی کامیاب نمائندگی پر نئے باکس ڈرین کی پائپ لائن اور نئی VDCC روڈ کے کام منظور کیے گئے ہیں، جس کی جملہ لاگت 3 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ تمام کام شروع ہو گئے ہیں، جس پر انہوں نے جلپلی اور شاہین نگر پہنچ کر مذکورہ کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر جلپلی کی مجلس پارٹی کے انچارج احمد سعدی، حفیظ پٹیل، رکن بلدیہ بارکس اور کمشنر جلپلی بلدیہ وینکٹ رام، سابق رکن بلدیہ محمد دستگیر کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار سے ملاقات کی۔ رکن کونسل نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مکتوب بھی اسپیکر کے حوالے کیا۔ مرزا رحمت بیگ نے شہر میں ترقیاتی کاموں سے متعلق اسپیکر کو تفصیلات بتائیں۔
स्पीकर ने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने बलदिया के सफाई अमले में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस किट्स में स्पोर्ट्स शूज, खोपरे के तेल की 2 बोतलें, साबुन, सैनिटाइजर, रेनकोट, तौलिया, जैकेट, ग्लव्स और फेस मास्क शामिल हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सफाई अमले की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि सफाई अमले की वजह से शहर में सफाई पाई जाती है। इस मौके पर हल्के याकूतपुरा के कॉरपोरेटर्स और बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मंगल और चारशंबे की शब मस्जिद शहजादी बेगम वाक़े अलीबाग का दौरा करके सीवरेज और सीसी रोड के मुकम्मल शुदा कामों का मुआयना किया। उन्होंने मस्जिद की मुसल्लियों से भी मुलाकात की, जिस पर मुसल्लियान मस्जिद ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। नवें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में हंगामा और शोरगुल करने वाले 3 मुलजमीन को 10 दिनों की सजा सुनाई है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इस केस में इस्माइल, रेहान और उस्मान को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। नवे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत करते हुए मुलजमीन को सजा सुनाई। चंदूलाल बारादारी के इलाके में जीएचएमसी के सफाई अमले के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर मेडिकल कैंप कायम किया गया। रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि मजलिस अवाम की सेहत और सफाई की खिदमात का ख्याल रखती है। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सरकारी दवाखानों के बड़े डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट भी करवा कर उनमें दवाएं तकसीम की गईं, जबकि शदीद बीमार होने वाले मरीजों को दवाखानों से रुजू करवा दिया गया है। इस मौके पर बलदिया के ओहदेदारों के अलावा डीएमएचओ और एएमएचओ भी मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद बनलागुड़ा में नशे की हालत में गाड़ियां और 2 व्हीलर्स चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। ट्रैफिक डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि नशे की हालत में ड्राइविंग और राइडिंग से हादसों में इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर हफ्ता और इतवार के अलावा दूसरे दिनों में भी मुख्तलिफ औकात में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि नशे की हालत में गाड़ियां चलाने से गुरेज करें, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी चंद्रायन गुट्टा वी चंद्रा कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास नायक भी मौजूद थे। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीरुद्दीन वल्द शेख बुरहान का मुख्तसर सी अलालत के सबब चारशंबे की सुबह इंतकाल हो गया। वो रोज़नामे मुनसिफ से वाबस्ता रहे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद कुतुब शाही बाजार घाट में अदा की गई। तदफीन मुतसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। वो गुज़िश्ता 4 दहों से पेशे सहाफ़त से वाबस्ता रहे। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान शामिल हैं। सहाफ़ियों की मुख्तलिफ तंजीमों और अंजुमनों की जानिब से उन्हें खिराज पेश किया गया। जिले वरंगल के वर्धनापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बीवी ने कोल्ड ड्रिंक में कीड़े मार दवाई मिलाकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। जी बालाजी अपनी अहलिया कांति और 2 बच्चों के साथ भवानी कुंटे में रिहाइश पजीर था। 8 जुलाई को बालाजी जब घर वापस आया तो उसकी बीवी कांति ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया, जिसमें कीड़े मार दवाई मिली हुई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बालाजी ने गले में जलन और तकलीफ की शिकायत की और वो बेहोश हो गया। ये देखकर उसकी बीवी कांति उसे घर में छोड़कर अपने बहनभाई दशरथ के घर चली गई। बालाजी की हालत देखकर पड़ोसियों ने उसे एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महलूक बालाजी के वालिद हरिचंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
रामचंद्रपुरम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने जिला संगारेड्डी के एक्रेसाइट के करीब एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि वो इलाके की एक फैक्ट्री और आसपास के इलाकों में गांजा फरोख्त कर रहा था। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स उड़ीसा से गांजा दरामद करते हुए इस इलाके में फरोख्त कर रहा है, जिसके बाद पुलिस इस पर नजर रखे हुई थी। बाद में उसे गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम कर्नाटक के जिले बीदर का रिहायशी है। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंगल की रात रिहायशी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गौहर गुलशन फंक्शन हॉल के रूबरू वाक़े एजाज रेसिडेंस के दूसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला जाए वकू पर पहुंच गया। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने फायर डिपार्टमेंट से राब्ता करते हुए मोगलपुरा और सालारजंग म्यूजियम के आतिश फरो अमला समेत DRF को भी तलब किया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं, ताहम मकान में मौजूद हॉल AC और दीगर साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना समेत मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, QMax फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। कृष्णा नदी पर पानी के इस्तेमाल के लिए टेलीमीटर कायम करने दोनों उज़राए आला का इत्तेफाक। बंकाचरला प्रोजेक्ट का मुतालबा नहीं किया गया, इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजलास के बाद रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेडीगड्डा पर खुले मुबाहिस का KTR ने रेवंत रेड्डी को किया फिर एक बार चैलेंज। रेवंत रेड्डी राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, KTR का खिताब।
हवा के दबाव में कमी से बारिश के इम्कानात, कहीं शदीद कहीं हल्की बारिश की पेश कयासी, वस्त जुलाई तक मनफी बारिश। गांजे के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी, रामचंद्रपुरम में गांजा जब्त। और वरंगल के वर्धनापेट में अफसोसनाक वाकया, बीवी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर शौहर का किया कत्ल। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।